everyone, hello, welcome back to my channel. This is Ananya, you're watching Law Appreciation, and as I had promised you, or as I told you, that I will be coming with a series wherein we will be talking to the toppers कि उन लोगों ने अपने law entrance exams किस तरीके से clear किए. And today I have with me Parth Jain, who I met through YouTube itself, but is a very, very sweet student of mine, and I can proudly say that. So without wasting any time, let us just get straight in the video. Now today we will be focusing upon all those students जो कि LLB वाला law entrance exam crack करना चाहते हैं. So we will be discussing about all of those things. I already have my questions prepared in front of me. So Parth is a student of CLC, and now moving to Parth itself, we will be talking about कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी law entrance prepare किया, क्या strategy थी, सारी चीजें. And let us now just get. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you for inviting me over here. So yeah, so guys, my name is Parth, and last year I scored 262 in DU LLB entrance, and my rank was AIR 53. Oh, lovely. And I was fortunate, and I was fortunate enough to land into CLC. Yeah. So, right. Then that's all. Okay. So now, as you told me that you landed up in CLC, and you are also the COVID batch of the legal education times, right? So how is this online university going? How is your life after admission? Yeah, so ma'am, life, have it's a very new chapter for us. जो हमारा बैच है, तो जब भी हम सुना था कि हाँ CLC की वैल्यू है, ये कॉलेज में ये होता है, वो होता है, तो अनफॉर्चुनेटली बैच ऑफलाइन जा नहीं पाया, बट स्टिल आई कैन हैव दैट थिंग कि हाँ CLC की ब्रांड वैल्यू कितनी है. लाइक आई हैव एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंडेड जब मेरी इंटर्नशिप वगैरह थी. तो आई फाउंड जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, सो आई आस्क्ड हिम सर बाद में कि सर आपने मेरे को ऐसे ले कैसे लिया. आई वाज वेरी फ्रेशर एंड फर्म का लेवल वाज क्वाइट गुड एट दैट टाइम. दे डोंट हैव फ्रेशर. तो ही सेड कि आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद CLC. तो ड्यू टू देयर कॉलेज एंड ब्रांड नेम, सो लाइक कि हाँ इसलिए मैं तेरे को ले लिया फॉर द इंटर्नशिप. तो दैट्स अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस, बट दैट काइंड ऑफ वैल्यू CLC होल्ड्स. तो उसके बाद तो लाइफ इट्स लाइक क्वाइट गुड. बट हाँ, थोड़ा प्रेशर रहता है ऑब्वियसली. लॉ स्कूल इट्स ऑल अबाउट प्रेशर. Right. No doubts. Law school is actually about a little bit of pressure, लेकिन मस्तीबाजी के साथ किया जाए तो easily निकल जाता है. And I'll tell you, Parth has actually मतलब ये तो उसका अपना first hand experience हो गया, but I have also seen this in my life कि जो आपका college name association है, when you're going for interviews and you're going for internships वगैरह, and if the person is from that particular college, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. एंड देन द इंटरव्यू फ्लोज लाइक एनीथिंग कि कोई दिक्कत ही नहीं होती वहां पे, है ना. सो ओके, सो नाउ all about the introduction and all. So now let us just straight away jump into the questions. We will be picking up one by one these questions, right? And जो भी is your insight, howsoever you have prepared, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे so as to gather different viewpoints, right? So the first thing that I want to know is prior to your actual preparation, जब सोचा कि मुझे लॉ कॉलेज ज्वाइन करना है, तो बिफोर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम क्या स्ट्रैटेजी थी? कुछ रोड मैप बनाया या कुछ चीजें देखी, क्या था? हाँ, सो बेसिकली मैम आई हैव डन टू थिंग्स. ठीक है, फर्स्टली तो आई हैव इन अ कॉपी रोड कि मेरे को कौन कौन से सोर्सेस कहाँ से करने हैं सब्जेक्ट वाइज, दैट विल टॉक अबाउट. एंड सेकेंडली उससे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आई स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट ईयर के पेपर्स. दैट्स अ गुरु मंत्रा, एवरीवन नोज कि पास्ट ईयर पेपर तो करने ही पड़ते हैं, एंड दैट्स ट्रू. तो मैंने DU के, BHU के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, एलिट के एंड क्लैट के लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर कर लिए थे. कोई छोड़ा नहीं. सबके हाँ, कोई छोड़ा नहीं. तो एक्चुअली जब आप ये सारे पेपर करते हो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ यार व्हाट यू आर गोना फेस इन द एग्जाम. तो लाइक फॉर एग्जांपल एलिट के अंदर या क्लैट में पहले के टाइम पे कभी कभी 2 लाइनर्स के अंदर पॉलिटी क्वेश्चन आ जाते थे. Which of the following statements is not true या true, something like that. But DU में they never ask. जब आप एक बार पेपर कर लेते हो, then you have the road map in front of you कि अच्छा मेरे से ये चीजें पूछेंगे. तो अब मैं I can focus on section wise now.
Right. एक आइडिया मिल जाता है. Right, right. So now talking about section wise that you have said, section wise ठीक किस है. तरीके से preparation होनी चाहिए? Because you already know that the paper is divided into sections. So what are those sections and how is the preparation? Correct. So the paper is divided into 4 parts. Number 1 polity, number 2 legal, number 3 English, and then आपकी reasoning और legal वाला aspect जो आता है. Right. ठीक है. And maths का भी. Maths I don't consider, मैं तो कुछ नहीं करके गया था. So we'll start with polity. ठीक है. Polity plays a very imperative role in this paper. ये आपका पास करवाने का काम पॉलिटी का एक होता है पीयू के अंदर मोस्टली टू सी. तो फॉर पॉलिटी व्हाट आई हैव डन, एक बुक आती है ल्यूसेंट की, ल्यूसेंट स्टैटिक जी के, तो उससे थ्योरी कर ली थी मैंने. देन आई बॉट अ क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर ये एसएससी, रेलवे, बैंक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, आई हैव डन दैट. तो अराउंड 500-600 एमसीक्यूज प्रिपेयर हो गए थे मेरे पॉलिटी से, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसके बाहर तो ठीक है, मतलब ये सोर्स मेरा फिक्स रहेगा. आई डोंट हसल एनीमोर फॉर द पॉलिटी स्टफ, क्योंकि मेरे सोर्सेज मेंशन था कि 2 सोर्स करने हैं. तो फर्स्ट आई हैव डन लूसेंट वाला थ्योरी, देन आई हैव शिफ्टेड टू एमसीक्यूज. तो पॉलिटी तो इतना ही ठीक है फ्रॉम माय एंड. देन विल मूव टू लीगल. ओके. तो लीगल के अंदर एपी भारद्वाज की बुक आती है एक. ठीक है. तो मेरे पास पुरानी वाली थी, तो पुरानी वाली में दो हैविंग मस्ट बी नोइंग कि इनिशियल जो पेजेस हैं उसके अंदर अराउंड 200 कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं. तो आई हैव डन दैट. ठीक है. उसके अलावा यूनिवर्सल की जो गाइड आती है, यूनिवर्सल सिंगल की आती है, तो मेरे पास यूनिवर्सल की थी, तो मैंने यूनिवर्सल से भी क्वेश्चंस किए थे. तो यूनिवर्सल का जो टॉर्ट्स वगैरह के इनके क्वेश्चंस होते हैं केवल एमसीक्यूज, आई हैव डन दैट. तो लीगल के अंदर मैंने ये करा. ओके. हाँ. देन विल मूव टू इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर यही मैंने अगेन एक क्वेश्चन बैंक पकड़ा. इंग्लिश में सी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यू कांट लर्न अ लैंग्वेज विद इन कपल ऑफ मंथ इफ यू सी. तो इंग्लिश में जिसकी नेचुरली है उसके पास एज हमेशा रहेगा. तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. तो मैंने क्या करा, केवल वही एमसीक्यूज करे या वही वर्ड्स करे जो मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर. तो अराउंड आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 400 वर्ड्स, जो भी इन टोटल वो कैप के ईडियम फ्रेजेस वगैरह, so जो भी मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे इजीली. तो वहां से लेके यू कैन लर्न दैट. इंग्लिश पे डोंट फोकस मच, मतलब मेरे हिसाब से. ओके. एंड देन लास्ट बचता है करंट अफेयर्स का. ओके. तो करंट अफेयर्स के अंदर आई फॉलोड 3 सोर्सेज इन टोटल. सबसे पहले तो देयर इज अ क्वेश्चन बैंक कॉल्ड स्टडी आईक्यू बेस्ट 300 बाय डॉक्टर गौरव गर्ग, जो करंट अफेयर्स फॉलो करें दे मस्ट बी नोइंग इट. एक तो वो करे थे. एक देयर चैनल कॉल्ड फिनोलॉजी लीगल, मैंने वहां से उनके जो करंट अफेयर कोर्स हैं वो परचेज किए थे. और एक मैं सेल्फ कभी कभी कुछ नोट्स वगैरह बना के चलता था, जो मेरे को लगता था कि यार ये इंपॉर्टेंट वगैरह है, तो आई जस्ट राइट इट डाउन एक कॉपी के अंदर, वहां से किए थे. तो ये तो थे डायरेक्ट सोर्स. अब मैम एक्स्ट्रा मटेरियल के ऊपर आए अगर, तो लाइक व्हाट चैनल्स की या किसी के एक्स्ट्रा मटेरियल जिनके मैंने हेल्प ली, तो एक चैनल है लॉ डाइजेस्ट बाय आयुषी मैम. तो उनसे मैंने एक लैटिन मैक्सिम्स वाला एक उनकी कोर्स आता है वो लिया था, और एक दो मॉक्स लिए थे, इंडिपेंडेंट मॉक्स आते हैं उनके, एक वो लिए थे. एक चैनल है टीएलओआई का, सहज सर का, दैट इज आल्सो क्वाइट पॉपुलर. उनके मैंने मॉक्स का सेट लिया था, एंड दैट वाज रियली वेरी वेरी यूजफुल. मतलब 2-4 क्वेश्चंस तो मेरे को वहीं से मिल गए थे. तो दैट्स अ मस्ट थिंग, मतलब आई रिकमेंड फ्रॉम माय एंड कि वो तो ले लेना. और फिर वही स्टैंडर्ड यूनिवर्सल के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं एंड में हर सब्जेक्ट के, ये तो स्पेसिफिक आई हैव टोल्ड यू. उसके अलावा जब आपके पास यूनिवर्सल की बुक होगी उसके अंदर केवल एमसीक्यू वाला पार्ट, वो मैंने पॉलिटी का और लीगल वाला कवर किया था. सो देयर वर अराउंड 500 एमसीक्यूज उसके भी. तो बस इतने पे आई स्टॉप्ड. इतने में यू स्टॉप. नाउ इतना करने के लिए हाउ मच टाइम डिड यू स्पेयर? हाँ. तो मैं मेरा 2 थिंग्स थी. मैंने वही बोला ना, आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन वेरी एवरेज स्टूडेंट. मतलब आई नो पीपल फ्रॉम माई बैच फ्रॉम अदर सेक्शंस जिन्होंने केवल लाइक 20 दिन पढ़ाई करी और उन्होंने क्रैक्ड सीएलसी वाला, जो हर कोई सुनता है. इट इज नॉट अ वेरी टफ पेपर, बट टू बी सिक्योर मैं ये सब करके गया था. तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के रोज 4 घंटे भी पढ़ोगे, 4-5 घंटे पढ़ोगे, सो इट टेक्स अराउंड 1.5 months टू कंप्लीट द होल थिंग. राइट. सो बेसिकली व्हाट पार्थ इज ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत एक, ये मैं अपने चैनल पे भी पहले भी बोल चुकी हूँ कि सीएलसी आई मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर क्रैक करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. रीजन बीइंग कि एक तो सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, राइट, एंड देन जो पेपर पैटर्न है वो भी कंपैरेटिवली काफी इजी है. But then Parth has devoted at least 1.5 months of his time, of his very precious amount of time in preparing for this particular exam, right? Now, agar if you have time in your hands,
you should do this, you should actually follow this rule. Why? Because आप वो 10 दिन में करके, मैंने खुद ने वीडियो बनाई है और मेरा खुद का ये रहा है कि मैंने 10 दिन में प्रिपेयर करके मैंने क्लियर कर लिया था. But then of course I wasn't one of the toppers, right? I just got into CLC, I was there in CLC. But then अगर आप actually prepare करोगे तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपकी पहले से थोड़ी अच्छी रहेगी एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प व्हाट द टीचर इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इन द क्लास, राइट? एंड देन अदरवाइज आल्सो इट बिकम्स इजियर, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट चांसेस हो जाते हैं, वो तुक्के वाला गेम थोड़ा खत्म हो जाता है ना? सो मूविंग फर्दर विद दिस, मैम एडमिशन होना चाहिए कैसे भी हो. बस एडमिशन होना चाहिए एक्चुअली कैसे भी हो, बस कैसे भी हो बस. right. Now coming to the part for the law entrance exam, कि जिस दिन आपका एंट्रेंस का पेपर हो उस दिन मिनिमम कितने क्वेश्चन करके जाने चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू हैव अ +4 -1 का क्राइटेरिया. ठीक है, तो इफ यू सी द मार्किंग स्कीम ना, +4 -1 वाला सीन, तो द एग्जामिनर वांट्स द स्टूडेंट्स की ज्यादा से अटेम्प्ट करें. Right. क्योंकि बाकी पेपर में यू सी द रेशियो थोड़ा वैसे रहता है, यहाँ पे तो +4 मिलते हैं, एक करेक्ट होती है. तो अगर एक सही है तो आप 4 को रिकवर कर लोगे. तो एग्जामिनर आल्सो वांट्स कि ज्यादा क्वेश्चन करो. तो इन ऑर्डर टू बी सेफ, लाइक कि हाँ मेरा डीयू में हो गया, अब कुछ नहीं है, अराउंड 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना. लाइक मेरा इतना था, आई अटेम्प्टेड अराउंड 80 समथिंग, बट इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन कि हाँ भाई डीयू के अंदर होना चाहिए. सीएलसी एलसी द डिफरेंट स्टोरी, वो तो बात की बात है, बट अराउंड 75 तो आप अटेम्प्ट करके ही आना, 70 to 75. राइट. सो बेसिकली जो +4 -1 वाली चीज है, दैट इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव मार्किंग. तो बिल्कुल तुक्के वाली गेम नहीं खेलनी है कि सारे के सारे टिक मार्क करके हमने शुरू कर दिया एंड जितने क्वेश्चन है हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, वो चीज नहीं करनी है. रादर यू शुड बी फोकस्ड अपॉन दैट, यस at least I know these minimum 75-80 questions which I feel is going to be correct, right? तो उससे आपके जो probable chances हैं वो बहुत ज्यादा obviously बढ़ जाती हैं, है ना? अब ये वाली जो बात अभी पार्ट तुमने खुद ने बोली, CLC LC1 LC2 वाली चीजें, so sorry, there is this notion that अगर मेरा CLC में नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं करूंगा law. Is it true? And should one actually do this? मैम इट्स अ स्टूपिडिटी, ठीक है, इट इज सुसाइड प्लान. अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको एलसी मिल गया और आपको सीएलसी नहीं मिला एंड यू आर टेकिंग ड्रॉप्स फॉर दैट, इट्स अ वेरी लेम थिंग टू से. ठीक है, देयर इज अ मिथ कि सीएलसी बहुत ज्यादा ये है वो है, एलसी में नहीं होता ये वो. आई आल्सो हैव फ्रेंड्स फ्रॉम एलसी एज वेल. तो इवन आई विल टेल यू, टीचर्स सफल होते हैं, ठीक है, आपके स्टैग्नेंट टीचर्स नहीं रहते कोई भी. जो एक्टिविटीज सीएलसी में होती है, फॉर एग्जांपल मूटिंग वगैरह या जो भी एक्सवाइजेड हो गया, वो एलसी में भी होती है. तो द होल पर्पस एलसी और सीएलसी का टाइमिंग के बेसिस पे हुआ था कि फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स वो लोग दूसरे में आए, इसमें आए. तो सीएलसी का नाम इसलिए ज्यादा है ना क्योंकि सी उस टाइम पे जब इनिशियली सीएलसी था तो सारे एलुमनाई जजेस वगैरह जो आज आप देखते हो वो दे बिलोंग्स टू सीएलसी, राइट? इसलिए है. मार्कशीट पे कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि आप सीएलसी से हो, आप एलसी2 से हो, एलसी1 से हो. तो इट्स अ वेरी लेम थिंग. अगर आपको एडमिशन मिल रहा है डीयू में तो डीयू है, जस्ट टेक दैट एडमिशन फॉर गॉड सेक, डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स. Right. As Parth has actually very clearly said कि ये बेवकूफी वाली चीज हो जाएगी अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो, which is very true because he has already mentioned कि जो basic difference है दोनों के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था बिकॉज ऑफ द टाइमिंग. गलती अगर कोई बच्चा देख रहा है ये वीडियो और ऐसा कुछ सोच रहा है करने का, मत करना प्लीज. ये हम दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट है आपको, राइट? Then उसके बाद, हाँ, coming to a very important question, we are at such a time. YouTube पे you have so many wonderful channels which you have named right now. अब उसको अगर थोड़ा सा elaborative way में बता पाओ कि किस तरीके से स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्यादा ग्रुप के साथ एसोसिएटेड मत हो, लाइक फॉर टेलीग्राम या कहीं और. बीइंग अ स्टूडेंट आई विल टेल यू कि जितना आप देखते हो ना, जैसे मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे था इनिशियली, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते थे और दिल आंसर सुनने को लगता था कि यार मेरे को तो जाता ही नहीं है, ये सब तो कर रहे हैं बहुत तैयारी. तो इट क्रिएट्स प्रेशर आपके ऊपर कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा. सो अवॉइड दैट. अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके ऊपर फोकस करो. यूट्यूब पे दे आर वंडरफुल क्रिएटर्स
ठीक है, तो उसके अंदर अवेल द बेनिफिट फ्रॉम देम, राइट लाइक यू नो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो चैनल्स फॉलो किए थे, मैंने उनका स्टडी मटेरियल वगैरह अवेल किया, सो इट हेल्प अ लॉट एट द एंड। राइट तो डू दैट इंस्टेड ऑफ हसलिंग अराउंड कि हाँ यार ये क्वेश्चन मिल जाए, वो क्वेश्चन मिल जाए। द रिविजन इज द की। आप राइट अगर एक बुक 4-5 बार कर लोगे वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि आप एक बार में 5-10 सोर्स कर लो। राइट। तो यूज इन अ वेरी सो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूंगी वो ये है कि अगर लॉ में नहीं होता या डीयू में नहीं हो पाता, ये वाली नहीं कर पाते, तो फिर बैकअप प्लान क्या था? हाँ हाँ, ये तो मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हर किसी के दिमाग में चलता है कि डी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हाँ तो हाँ, तो सी देयर आर वेरी अदर गुड कॉलेजेस 3 ईयर के अंदर। मैम प्रॉब्लम क्या है ना कि कॉलेज अच्छे कम है। यूल सी क्लैट वगैरह का स्टफ, तो 5 ईयर वालों के पास क्या थोड़ा बेनिफिट रहता है कि कॉलेजेस बहुत सारे हैं। राइट 3 ईयर के अंदर कंपैरेटिवली कॉलेज कम है। तो फ्रॉम माई एंड व्हाट आई कैन टेल यू, कुछ अच्छे कॉलेज के नाम बताता हूँ, यू कैन फोकस दैट एज वेल। तो राइट एट द एंड इफ यू आर हैविंग पोटेंशियल या यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, तो यू नो कॉलेज का टैग फिर आपके लिए उतना वर्क नहीं करेगा, आप अपने आप ग्रो करोगे। नो वन कैन स्टॉप यू। ये तो आई हैव आल्सो सीन इन इंटर्नशिप्स कि बच्चे ऐसे कॉलेज से आते हैं, नाम कभी नहीं सुना, बट दे आर सो गुड, दे आर सो इंटेलिजेंट, लाइक काफी उनमें पोटेंशियल वगैरह दिखता है। तो आई विल टेल यू सम गुड कॉलेज। लाइक जो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी थी कि हम्म अगर मेरा सीएलसी नहीं होता तो मैं क्या करता। तो फर्स्टली आई टारगेटेड पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेशली चंडीगढ़, उसके 3 सेंटर्स आते हैं, चंडीगढ़, मोहाली और एक लुधियाना आता है शायद। So ओके it's a very good university, I'll tell you. I have friends over there. It's a very good university. If you're getting a chance कि वहां जाने का, अगर आपका डीयू में नहीं होता, खुदा ना खास्ता आपको पीयू मिल रहा है, तो हम्म ब्लाइंडली चल जाओ वहां पे। दैट्स माय पर्सनल सजेशन। मैं तो राइट यही करता। राइट तो पीयू इज वेरी गुड। ओके सेकंड आपके पास आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन 3 ईयर के लिए। हम्म बट बीएचयू का पेपर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। लाइक आई टेल यू कि मेरे बैचमेट्स के ही 1 डिजिट रैंक थी बीएचयू के अंदर, ठीक है। ओके ऑल्दो दे ऑप्टेड फॉर सीएलसी, और हम्म मेरा बीएचयू शायद क्लियर भी नहीं हुआ था, मेरे को याद भी नहीं, पर बीएचयू बहुत यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। वहाँ पे स्टैटिक के क्वेश्चन हर साल शफल करते हैं, कभी मैथ्स के कभी किसके, सो यू डोंट नो। तो हम्म बीएचयू इज लाइक अ ब्लाइंड गेम। राइट तो बीएचयू का भी अगर फॉर्म भर दो, फॉर्म तो मैम ऑब्वियसली भरने में क्या है, ठीक है। इफ यू कैन अफोर्ड, थर्ड ऑप्शन इज जिंदल। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। राइट मतलब टू बी ऑनेस्ट दे चार्ज मनी, बट इफ यू गाइस कैन अफोर्ड तो वहां जाओ, ठीक है। वहां पे तो दे आर हैविंग वेरी गुड रिसोर्सेज एंड टीचर्स वगैरह। तो ओपी राइट जिंदल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड देन वी हैव एमएचसीईटी के कॉलेजेस, लाइक जीएलसी हो गया, आईएलएस हो गया। पुणे के हम्म अंदर देयर इज फर्गसन कॉलेज, हम्म दैट इज आल्सो क्वाइट गुड। तो दीज वर माय बैकअप प्लान। डोंट टेक ड्रॉप इन लॉ। अगर आप 3 ईयर के अंदर हो, आपको जस्ट इन केस नहीं मिल रहा और इनमें से कोई यूनिवर्सिटीज मिल रही है जो मैं नाम ली, जस्ट गो फॉर दैट। दैट विल माय पर्सनल सजेशन टू एनीवन हु इज। राइट। तो आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दिस पार्ट कि अगर आप लोगों को बाई चांस डीयू नहीं मिल पा रहा है, देन डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर, बिकॉज as Parth said, and this is my personal opinion also, कॉलेज का नाम मैटर करता है, no two doubts, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता। मतलब इतना नहीं करता that you know you will play stakes with your life, with your career basically। तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, किसी भी कॉलेज में लो। अगर बाई चांस आपका नहीं हो पा रहा है डीयू में या जिस भी कॉलेज में यू आर एमिंग फॉर, एंड यू स्टडी हार्ड, you focus yourself for those 3 years or those 5 years, whatever you have planned for, and trust me, you will be able to achieve whatever you want to। मतलब college is not the end thing कि भाई अगर ये नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। करेक्ट, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। हाँ Right, it's just the beginning। Then finally I guess we have covered all the question। Lastly, कोई last minute tip, especially अब बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है एंट्रेंस एग्जाम, तो कोई ऐसा हाँ, जो जिसने शायद वो अभी बैठा हो प्रिपरेशन के लिए, उसके पास टाइम ठीक नहीं है, है, कुछ नहीं है, तो कोई लास्ट मिनट ठीक टिप है एज अ सीनियर? मैम। अभी टू बी ऑनेस्ट टाइम है। सी यू आर हैविंग अराउंड अ मंथ, आराम से राइट प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट तो डोंट डू फ्यू मिस्टेक्स दैट आई हैव डिड, ओके। तो सबसे पहले तो पॉलिटी कवर करना रिगरसली। हम्म मॉक्स इज द की। मॉक्स तो आप लाइक आई टोल्ड यू टीएलओआई के मैंने मॉक का सेट लिया था और 2-3 लॉ डाइजेस्ट के उनके लिए थे। दैट हेल्प अ लॉट। मॉक्स तो लेने ही लेना है, यू कांट स्किप दैट पार्ट। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही, फिर भी मॉक्स ले लो। आप राइट अगर 20-10 मॉक्स करते हो तो उसके अंदर भी आपका सिलेबस काफी हद तक कवर हो जाता है, केवल मगिंग अप दोज ओनली। एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जल्दबाजी मत करना।
मैम मैंने तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे, ऊपर लिखा हम्म, हुआ था कोई नॉट वगैरह, मैंने पढ़ा नहीं शायद, और ऐसे टिक कर दिया, तो वो आंसर आता हुआ गलत हो गया। जब हाँ, आपको आंसर आता है तो यू विल गेट एक्साइटेड कि हाँ हाँ आ राइट, रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो डोंट डू दैट। पेपर को 2 से 3 बार चेक करके आना, एंड 75 क्वेश्चन तो करके आना है यार, अप्रॉक्स 70 to 75, राइट, 70 के नीचे नहीं। राइट, इफ राइट। यू आर एमिंग फॉर सीएलसी, इफ यू आर एमिंग फॉर सीएलसी, मतलब बेयर मिनिमम। राइट, राइट, ये वाला पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि जब स्पेशली हम पढ़ाई करते हैं ना तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं दैट वी नो दिस आंसर, ओ ये तो वो वाला क्वेश्चन है, ये तो अपने को पता है। एंड इसी में जनरली बहुत सारी गलतियां होती है विच आई हैव आल्सो डन इन माय टाइम। एंड ही हैज वेरी करेक्टली पॉइंटेड दिस आउट कि उस एक्साइटमेंट में व्हाट स्टूडेंट्स डू दैट दे डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, और उनको वो ट्रिक ही नहीं समझ में आती कि भाई उल्टी चीज पूछी हुई है, यहाँ आपको दूसरा आंसर देना है ऑल टुगेदर, वो चीज नहीं देना जो तुम्हारे दिमाग में है। सो कीपिंग योर सेल्फ काम, कीपिंग योर सेल्फ कंपोज्ड एंड कीपिंग योर सेल्फ फोकस्ड is the key for clearing any kind of entrance or for clearing any kind of exam for that matter. So I think we have tried and answered all the questions. Thank you so much, Parth, for agreeing अरे to do this. मैम And to all the students who are watching this, this is a very short, मतलब this was a very short try from our side कि हम आपको अपनी तरफ से एक insight दें, एक बहुत candid conversation रखी गई यहाँ पे। There was no script, nothing, हम दोनों बस बैठ गए and we are talking in front of you. So as to make you understand that it is not that difficult, you just need to focus थोड़ा सा, and अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे और जुडिशली अपने आप को बैठा के पढ़ा लोगे, ट्रस्ट मी नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू एंड यू विल क्लियर द एग्जाम। तो अगर कोई भी फर्दर क्वेश्चन है, कुछ भी आपको चीज समझनी है, जाननी है, तो कमेंट सेक्शन इज एज यूजुअल ओपन फॉर यू ऑल। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट है, क्वेश्चन है, वो आप पोस्ट कर देना एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। Till then, please take care of yourself. Bye. Thank you so much, Parth. See you थैंक यू मैम, again. थैंक्स अ लॉट। Bye.